So in the previous class we have discussed square root of a complex number और वहीं से हम बात चालू कर रहे हैं. रूट ओवर -8 -6 आयोटा या -8 -6 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. Already we have discussed many questions based on this. Approach is taken that equals to x plus iota y. Square root of a complex number उसको हमने consider किया x plus iota y and squaring both sides. Squaring both sides -8 -6 iota is equals to squaring जब आपने किया it will become x square minus y square plus 2 iota xy. Squaring both sides. रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया. रियल पार्ट को इक्वेट किया तो रियल पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन द राइट हैंड साइड एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड इट्स -8. इमेजिनरी पार्ट इज 2xy. 2xy is the imaginary part in the right hand side and it is equals to -6 here. So x square minus y square equals to -8 and 2xy equals to -6. Our target is to find out this complex number which is the square root of -8 -6 iota. So x square minus y square अवेलेबल है, 2xy अवेलेबल है, तो आपने बिना देरी किए x square plus y square whole square को कैलकुलेट किया. So it is x square plus y square whole square is equals to x square minus y square whole square plus 2xy whole square. So what you are getting? You are getting x square plus y square whole square as this is -8 and -8 in square of that will become 64 plus 2xy which is -6 and square of that will become 36. So 64 plus 36 that is equals to 100. So finally we are getting x square plus y square as equals to 10. So x square minus y square equals to -8 and x square plus y square equals to 10. ये हमने फाइंड आउट किया and definitely add किया और subtract किया will be getting the value of x as well as value of y. So when I add these two I am going to get on adding 1 and 2 2x square equals to 2x square equals to 2. So x square equals to 1 and x equals to plus minus 1. That's okay. और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस टू -y square minus 2y square and -2y square equals to -18. ठीक है ना, या 2y square equals to 18 लिखूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. 2y square equals to 18, y square equals to 9 and all of you are comfortable now. काफी क्वेश्चंस आप बना चुके हैं, बहुत अच्छी बात है. y equals to +-3. So definitely आप अवेयर है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट 4 कॉम्बिनेशंस. आपको 2 ही कॉम्बिनेशन मिलेंगे और वो कॉम्बिनेशन को देखने के लिए 2xy equals to -6 प्रोडक्ट ऑफ xy इज कमिंग एज नेगेटिव और xy का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है. इसका सीधा सा मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. इफ यू टेक x इज इक्वल्स टू, आई हैव टू डिस्कस स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर -8 -6 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा था मैं. इफ x इज पॉजिटिव, इफ इफ इट इज 1 देन y इज गोइंग टू बी नेगेटिव 1 -3 आयोटा. And if I take x as negative, if I take -1 it is going to be +3 iota. और इसको कंबाइन करके लिखा जा सकता है, एग्जैक्टली लिखा जाता है इसको कंबाइन करके इज इक्वल्स टू +-1 -3 iota. If you take plus sign it is 1 -3 iota and if you take minus sign it is -1 + 3 iota. Your job is done. That is the square root of a complex number which we have already discussed. General question, find the value of z या find the complex number z which satisfy the two given equations. This is the first equation, this is the second equation. complex number z find out करना है जो दोनों equation को satisfy करता है. देखिएगा the first one, जो फर्स्ट इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी डेफिनेटली टेकन एज x प्लस आयोटा y, इसमें कोई डाउट नहीं. फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, मॉडुलस ऑफ z -4 अपॉन z -8 इक्वल्स टू 1. सबसे पहला काम किया हमने यूजिंग z1 बाई, मतलब ये आइडिया होना चाहिए कि आप कहाँ क्या यूज कर रहे हैं ना.
z1 by z2 and magnitude of that can be written as mod z1 upon mod z2. So it is going to become modulus of z minus 4 divided by modulus of z minus 8 is equals to 1. That's okay. आइडिया है आपको, कोई बहुत नई बात नहीं है, आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बेस्ड ऑन मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड जेड कंजुगेट. इट इज बिकमिंग मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 4 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 8. दो अप्रोच हो सकती है, एक ये कि स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड यूज मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड जेड कंजुगेट कर सकते हैं, और एक ये बात कि ये जस्ट कीप द वैल्यू ऑफ जेड एज, या कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रिप्लेस कर दो आप एक्स प्लस आयोटा वाई से, कोई दिक्कत नहीं है. If I keep z equals to x plus iota y, I am writing all the steps here. X plus iota y minus 8, right? It is becoming modulus of x minus 4 plus iota y is equals to modulus of x minus 8 प्लस आयोटा वाई एंड मॉडुलस ऑफ दैट, है ना, मॉड, ठीक है. मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज नथिंग बट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज नथिंग बट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर रूट हटा के लिख दूं, चलेगा यार? यू आर अवेयर ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पर भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट के साथ में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना. सो आई कैन राइट हियर, यहीं पर स्क्वायर कर देते हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. सो दैट एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना था आपको. इस फर्स्ट इक्वेशन को जब सॉल्व करना चालू किया, वाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डायरेक्टली. एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको डायरेक्टली. व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स? ठीक है ना, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6. एक्स की वैल्यू मिल गई आपको 6. So if you are getting the value of x as 6, अब now your target is to find out y also. y भी find out करना पड़ेगा आपको, और y find out करने के लिए सेकेंड इक्वेशन लिया आपने. This is the second equation. This is the second equation, right? It is 3 times modulus of z minus 12 mod of that is equals to 5 times modulus of z minus 8 iota. Again we have kept z is equals to x plus iota y. z को फिर से x plus iota y रखा, लेकिन x ऑलरेडी हमें मिल चुका है, that is equals to 6. तो अभी हम डायरेक्टली y के टर्म्स में बात करेंगे. Now we keep z is equals to x plus iota y. x को रिप्लेस किया 6 से, 6 प्लस आयोटा y. फाइन भाई, x ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर अननेसेसरी उसको x और y के टर्म्स में क्यों कैरी करेंगे? x इज ऑलरेडी 4, ठीक है, फाइन. नाउ z को रिप्लेस किया आपने 6 प्लस आयोटा y से, और z को रिप्लेस किया आपने यहाँ पर भी 6 प्लस आयोटा y से. ठीक है, देखिएगा 3 टाइम्स 6 प्लस आयोटा y minus 12, it is 6 plus iota y minus 12 mod of that is equals to 5 times modulus of 6 plus iota y minus 8i. राइट, अभी टारगेट क्या हमारा? x ऑलरेडी निकाल चुके हैं, y फाइंड आउट करना है. 3 टाइम्स माइनस 6 प्लस iota y is equals to 5 times 6 plus iota y minus 8. राइट, अब क्या किया जाए? अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड सो दैट रूट ओवर का टेंशन खत्म हो जाए, स्क्वायर रूट की दिक्कत खत्म हो जाए.
स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब हम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इट इज 9 टाइम्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज -6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर प्लस y minus 8 whole square. Is that clear? ठीक है, a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. काफी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, स्क्वायरिंग भी कर दिया आपने. नाउ पॉइंट इज x ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं. यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस ओनली. इट इज बिकमिंग 9 टाइम्स 36 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 टाइम्स 36 plus y square plus 64 minus 16y. Just check. You are going to get a quadratic equation in terms of y. y के terms में आपको एक quadratic मिल रही है, अभी मिल रही है, दिख रही है. It is 25y square minus 9y square is 25 minus 9. चेक कर लिया ना, कंप्लीट. ठीक है, 25 minus 9 16y square. It is 25 into 16. y की टर्म केवल इधर ही आने वाली है. ओके, 25 into 16, what is that? 25 into 16 minus of 400y. Then the remaining term 64 plus 36 100. It will become 100 into 25 2500, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2500 में से माइनस 9 टाइम्स 36. व्हाट दैट रिजल्ट, 2500 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 324 प्लस 2500 माइनस 324. सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं यार. व्हाट दैट, 2176 इक्वल्स टू 0. बोले सर कुछ बट टिपिकल सी आ रही है, आने दीजिए ना. आई थिंक शायद 16 से डिविजिबल होगा, पूरा 16 से डिविजिबल होगा, है ना. 2176 इज डिविजिबल बाय 16. चेक कर लीजिए. फाइनली यू आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक. मिल गई आपको एक क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y. y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ गई, और y के टर्म्स में अगर क्वाड्रेटिक आ गई है, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट. यू विल बी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ y. हाँ, सो इट इज, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ y. ये तो 16 से आपका कैंसिल हो रहा है पूरा पूरा. y स्क्वायर माइनस 25y है ना, प्लस 136 इक्वल्स टू 0. फैक्टराइज आप जरूर कर पाएंगे इसको, हो जाएगा फैक्टराइज. यू विल बी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ y. प्लीज टेल मी द टू वैल्यूज. व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ y? बता पाएंगे आप लोग. x की वैल्यू ऑलरेडी, यस वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज 6. x की वैल्यू आ चुकी है 6. वैल्यू ऑफ y 17 and 8 है ना. y की वैल्यू 17 और y की वैल्यू 8. So you are getting two complex numbers. There are two complex numbers. One is 6 plus 17 iota. And प्लीज प्लस माइनस चेक कर लीजिएगा ना, ठीक है ना. 1 is 6 plus 17 iota and other one is 6 plus 8 iota. बात बन जाती है. बेसिक अप्रोच से काम किया हमने. फिर से देखिएगा. फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशंस. फर्स्ट को कंसिडर किया हमने. इट्स अ प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन. ये भी सवाल जो है पूछा हुआ सवाल है. सेपरेट किया, स्क्वायरिंग किया, z को x प्लस आयोटा y से रिप्लेस किया, और मॉड z इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिंपल सी उतनी सी बात का यूज किया, और कोई खास बात नहीं. यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x डायरेक्टली. x की वैल्यू मिल गई. x की वैल्यू अगर मिल गई तो सेकंड में हमने पुट किया, फिर उसको सेकंड में पुट किया, लेकिन उसको सॉल्व करते हुए जब सेकंड में x प्लस आयोटा y z को रखा है तो x की वैल्यू को 6 रख दिया हमने. दैट z इज इक्वल टू 6 प्लस आयोटा y. z की वैल्यू को 6 प्लस आयोटा y, और फिर से अरेंज किया. real part, imaginary part, and then again squaring both sides, right?
गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y, और y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ रही है, यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ y, और y की दो वैल्यूज आ रही है, तो यू आर फाइनली यू आर गेटिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 6 plus 17 iota and 6 plus 8 iota. Now we are discussing an important concept for competitive exam purpose. Concept easy है लेकिन applications काफी strong है, and that is about the cube roots of unity. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्लस पीएनसी, या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्लस प्रोबेबिलिटी, या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्लस डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, ऐसे क्वेश्चंस मिक्स आते हैं. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, we have discussed about the square root first. Now we are discussing the cube root of unity. Unity means 1, 1 का cube root. So we are discussing cube root of unity या 1 का cube root. ध्यान से देखिएगा. If I take x is equals to cube root of unity, 1 का cube root, 1 raised to power 1 by 3, cube root of unity, unity का cube root. Both sides cube किया, x cube equals to 1. No, it's not x equals to 1. बस यहीं पर जो सोचने वाली बात है, क्यूबिक इक्वेशन, इफ यू आर गेटिंग एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 या एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं. इफ यू टॉक अबाउट द रियल रूट, दैट रियल रूट इज गोइंग टू बी 1. इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन. वी हैव डिस्कस्ड इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आल्सो दैट इमेजिनरी रूट्स ऑकर्स इन पेयर्स. इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन. और एक और बात जरूर ध्यान आपको होगी, और वो ये कि जो भी ऑड डिग्री की इक्वेशन होती है उसका कम से कम एक रूट हमेशा रियल होता है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं. तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इफ आई फैक्टराइज दिस, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 0. तो वन ऑफ द रूट इज क्लियरली 1, इसमें कोई डाउट नहीं है. एक रूट इसका डेफिनेटली 1 होगा. वी आर सॉल्विंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. So one of the root is x equals to 1, x minus 1 equals to 0, so it's x equals to 1, and that second equation is x square plus x plus 1 equals to 0. अभी x square plus x plus 1 equals to 0 आप कहेंगे रियल रूट्स नहीं है, बट इमेजिनरी तो हैं, and we are discussing the complex number. So x is equals to x square plus x plus 1 को जब आप सॉल्व करेंगे, x is equals to minus 1 plus minus रूट ओवर, चलिए करके बताते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट. इट इज बिकमिंग व्हाट, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3, एंड रूट ओवर माइनस 3 तो रूट 3 आयोटा बाय 2. सो फाइनली जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करने पे आई एम गेटिंग द 3 रूट्स. One of the root is real, which is 1, and other 2 roots are imaginary. And imaginary roots occurs in pairs. Yes, those 2 roots are pairs, in pairs. We have discussed in quadratic equation. If one root is alpha plus iota beta, other root is alpha minus iota beta. और आज की तारीख में आप जानते हैं कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा और एक रूट, इफ वन रूट इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा, सेकंड रूट इज अल्फा माइनस आयोटा बीटा, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं. अल्फा प्लस आयोटा बीटा का कंजुगेट आप लोगे तो इट इज अल्फा माइनस आयोटा बीटा. So finally, अभी फिलहाल जब मैं रूट्स की बात करता हूं तो दो रूट्स आर, वन ऑफ द रूट इज 1, द सेकेंड रूट इज माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, एंड द थर्ड रूट इज माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2. यस, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं. इमेजिनरी रूट्स ऑकर्स इन पेयर्स एंड दोज आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर. तो माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 का कंजुगेट अगर आप लोगे तो इट इज माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2. And if you take the conjugate of this, you are going to get this. Point is, you are getting 3 roots. One root is real, and other 2 roots are imaginary. और वो जो imaginary roots हैं, एक root तो जो real है वो real 1 है, और जो imaginary roots हैं, those imaginary roots are denoted by omega and omega square. Those 2 roots are omega and omega square. Clearly दोनों एक दूसरे के if I take the conjugate of omega, it is going to be
omega square, and if I take the conjugate of omega square, it is ओमेगा, एक दूसरे के कंजुगेट है ये। दूसरी बात रटने वाली बात नहीं है सर कि ओमेगा को -1 प्लस वाला ओमेगा लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, रिप्लेस कर सकते हैं आप उसमें। एक रूट ओमेगा है, दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर होगा, और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा होगा। ठीक है, अब इनके ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टीज, और जब प्रॉपर्टीज की बात की जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। तो प्रॉपर्टी, जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज जब आप डिस्कस करोगे तो फर्स्ट वन, ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ओमेगा क्यूब 1 होता है। द रीजन इज ओमेगा क्यूब 1, पहली बात तो ये यार कि किस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, फाइनली किस इक्वेशन को सॉल्व किया, ये सॉल्व द इक्वेशन x क्यूब इक्वल्स टू 1। तो x क्यूब इक्वल्स टू 1 को अगर आपने सॉल्व किया है, उसके 3 रूट्स मिले हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो तीनों सेटिस्फाई करेंगे उसको, तो 1 भी सेटिस्फाई करेगा। यस, 1 का क्यूब 1, ओमेगा अगर रखेंगे, इफ यू कीप ओमेगा हियर, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। बोले सर ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा, जरूर करेगा, ओमेगा रेज़ टू पावर 6 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो 3 के मल्टीपल में जो भी नंबर्स आने वाले हैं, दोज आर गोइंग टू बी 1, मतलब ओमेगा क्यूब 1 है। इफ आई कैलकुलेट ओमेगा रेज़ टू पावर 6, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1, ओमेगा रेज़ टू पावर 9 1, जो भी हैं 3 के मल्टीपल्स में आएंगे, राइट। And the second result is, so one of the result is omega cube is 1, and the second result 1 plus omega square is equals to 0. So 1 plus omega square equals to 0. इधर देखिएगा आप, दिस इज 1, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दीजिए। अगर आप तीनों को ऐड करते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, शायद दिख रहा होगा आपको, 1, this is -1/2 will become -1, 1 minus 1 0, and √3 iota by 2 and minus √3 iota by 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, हो रहा है ना, दिख रहा है ना। इफ यू एड these 3, ऐड करना तो आता है आप लोगों को, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड एट द सेम टाइम भाई ओमेगा रूट है, बोर्ड पे देखिएगा, ओमेगा इज रूट ऑफ दैट, तो ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पॉइंट इज, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो जिन रिजल्ट्स का हम यूज करने वाले हैं, वन ऑफ द रिजल्ट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, द सेकंड रिजल्ट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द, हाँ, एक दूसरे कंजुगेट्स होते हैं, नो डाउट इन दैट, आर द रूट्स ऑफ द यूनिटी, 1 के क्यूब रूट हैं ये, ठीक है ना। अब ये 1 ओमेगा स्क्वायर, एक टास्क में आपको देता हूं कि इसको जरा इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें, एंड देन विल बी लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 1 ओमेगा स्क्वायर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, 1 इज अ रियल नंबर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बता दीजिएगा। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, जस्ट डू इट। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो वन ऑफ द रूट इज -1 प्लस √3 iota by 2, that can be written as -12 plus √3/2 iota। पोलर फॉर्म का मतलब तो आप जानते हैं, दैट इज नथिंग बट z इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इज द मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, अवेयर हैं आप उससे, एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट थीटा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट इज माइनस थीटा। तो -1/2 plus √3/2 iota, magnitude of that complex number. Let's say if I denote it by omega, मान लीजिए क्या मैंने कि ओमेगा है,
तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं बोले सर, क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं है? दैट इज क्लियरली गोइंग टू बी वन। वन के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी के क्यूब रूट को डिस्कस कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड तो वन ही आना है। इफ यू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू आर गोइंग टू गेट वन। 1/4 प्लस 3/4, 4/4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, वो तो आना ही है। मैग्नीट्यूड तो 1 है। हाँ, व्हाट अबाउट द आर्ग्यूमेंट? यस, इट इज इन द क्वाड्रेंट, इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एंगल इज पाई माइनस थीटा, और tan थीटा अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y बाय एक्स, दैट इज √3/2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ हाफ, लेकिन मॉड ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज व्हाट, √3। tan थीटा इक्वल टू √3, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू π/3 और π/3, but it is in the second quadrant, so argument of that complex number, so argument of complex number omega, that is going to be pi minus π/3, and which is 2π/3. It can be written as magnitude is 1 cos 2π/3 plus iota sin 2π/3. likewise ओमेगा स्क्वायर की बात करें, so if I denote ओमेगा स्क्वायर मैंने कहा है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली 1 होगा विदाउट एनी डाउट। एंड इफ आई कैलकुलेट द आर्ग्यूमेंट, दैट इज -1/2 माइनस ऑफ √3/2 आयोटा, मैग्नीट्यूड लेने वाला हूं तो मैग्नीट्यूड तो क्लियर कट 1 है। tan थीटा कैलकुलेट करूंगा तो सेम अप्रोच, y बाय एक्स इट इज गोइंग टू बी √3, दैट इज इक्वल टू π/3, बट दैट इज देयर इन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर इन एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आर्ग्यूमेंट की बात की जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी थीटा माइनस पाई, दैट इज π/3 माइनस पाई, and which is minus of 2π/3. बाय द वे हमें कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? देखो सुनो, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज थीटा। सुनना, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? z कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट होगा माइनस थीटा, और डेफिनेटली -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 का कंजुगेट क्या है? तो -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। So if the complex number is having the argument as 2π/3, तो उसके कंजुगेट का आर्गुमेंट होगा -2π/3, होना ही था वो। तो z का आर्गुमेंट अगर थीटा है तो z कंजुगेट का आर्गुमेंट -θ होगा। इफ इट इज 2π/3, इट इज -2π/3। ये क्या किया हमने? ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ, इसको जब लिखेंगे cos माइनस ऑफ, पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, 1 times 1 is the magnitude cos minus theta plus iota sin -2π/3। सॉल्व करोगे तो सेम बन जाएगा वो, बट ये पोलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। मतलब सर इतना सब कुछ क्यों? 3 रूट्स आर देयर, दोस 3 रूट्स आर, वन इज 1, सेकेंड रूट इज ओमेगा, ये रहा ओमेगा cos 2π/3 plus iota sin 2π/3, and third root is omega square, which is cos minus 2π/3 plus iota sin -2π/3। तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है। अगर मैं उसको आर्गन प्लेन पे लोकेट करता हूं, इफ आई लोकेट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1 ओमेगा स्क्वायर, बोले सर 1 तो रियल है, तो ठीक है, प्योरली रियल, फाइन। आर्गन प्लेन पे लोकेट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। वी आर डिस्कसिंग द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ साथ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 ओमेगा स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या करते हैं, देखिएगा। वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 इज 1, तो डेफिनेटली 1 इज प्योरली रियल एक्सिस के ऊपर होगा। दिस इज 1। व्हाट अबाउट ओमेगा? ओमेगा का भी मैग्नीट्यूड लोगे तो दैट इज 1, दैट आर्गुमेंट इज 2π/3, 2π/3 इज द आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट ना, 2π/3।
third complex number is again having the same magnitude, one magnitude है, but it is there in the third quadrant, which is the conjugate of this complex number. क्लियर है? बोले सर क्या बता रहे हैं हम, देखिएगा. वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करते हैं. सुनिएगा ध्यान से, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात की जाती है. मैग्नीट्यूड तीनों का वन है. दिस इज ओमेगा स्क्वायर. मैग्नीट्यूड वाइज तीनों का मैग्नीट्यूड वन है, क्योंकि वन का ही क्यूब रूट आप डिस्कस कर रहे हो. ये पॉइंट एक ध्यान में रखने वाला पॉइंट. दीज थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट्स द vertices, एक important point, vertices of an equilateral triangle. वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये पहले सुन लीजिएगा, या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. represents vertices of an equilateral triangle. कैसा equilateral triangle? inscribed in a circle of radius 1 and center at origin. वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस को. ध्यान से देख लीजिए. वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इन तीनों वर्टाइसेस को लेते हुए एक ट्रायंगल अगर हम फॉर्म करेंगे, दैट ट्रायंगल इज गोइंग टू बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारे एंगल 60 60 60 के होंगे और सारी साइड्स की लेंथ सेम होगी. तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रिप्रेजेंट्स वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. बट कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल? विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. कैसा सर्कल? विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस एट 1. ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाला पॉइंट जो कि आपसे कहा जाए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को डिस्कस कर रहे हैं हम आज. रिप्रेजेंट क्या करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी एंड सेंटर एट ओरिजिन. मतलब इसके जब आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट करोगे, ये 2π/3, दिस इज आल्सो 2π/3, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 2π/3. देखो ना, आप देख रहे हो, ये सर्कल हमने फॉर्म किया, ये एंगल 2π/3 है. दिस इज आल्सो 2π/3 माइनस साइन के साथ में. रिमेनिंग एंगल इज दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 2π/3. ये डिस्टेंसेस सारी बराबर होंगी. डिस्टेंसेस सारी बराबर होंगी मतलब इसको लिखना आप थोड़ा सा आगे सीखेंगे. डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, है ना. इक्विलेटरल है बी, बी सी, ये बराबर होंगे और तीनों एंगल्स बराबर होंगे. राइट, नाउ विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. बट इसको थोड़ा प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा. So omega cube equals to 1, 1 plus omega square equals to 0. Based on this, we are going to solve some questions. You have to find out the value of 1 minus omega plus omega square is to power 5 plus 1 plus omega minus omega square is to power 5. 1 plus omega square अरेंज किया इसको. 1 plus omega square minus omega is to power 5 plus 1 plus omega minus of omega square is to power 5. 1 plus omega square can be kept as 1 plus omega square को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ ओमेगा प्लस 1 plus omega can be kept as
minus of omega square. It is becoming minus 2 omega raised to power 5 and minus 2 omega raised to power 5 plus minus 2 omega square raised to power 5, right? माइनस है तो नेगेटिव नंबर की ऑड पावर विल रिमेन नेगेटिव ओनली. 2 raised to power 5 can be written as 32 and omega raised to power 5. अगेन minus 2 raised to power 5 है तो minus 32 omega raised to power और 10, sorry, fine. It is minus 32. I have taken common. It is omega raised to power 5 plus omega raised to power 10. We have discussed omega cube is 1. Omega cube is 1, so it can be written as minus 32. Omega raised to power 5 can be written as omega cube into omega square plus omega raised to power 10 can be written as omega raised to power 9 into omega. Omega cube is 1. Omega raised to power 9 is 1. 1 place किया उसको, it becomes of 30 omega square plus omega. Omega raised to power 9 is 1. 3 के मल्टीपल में जो भी आने वाला that's going to be 1. Omega raised to power 3, 6, 9, 333. 3 के मल्टीपल में that's going to be 1. And then omega plus omega square can be kept as minus 1. So it is minus of minus 32 into minus of 1 and that is 32. So result is 32. So that's a simple problem based on application. We are discussing today questions based on this only. काफ़ी questions हैं और important questions हैं. Again 3 questions based on cube roots of unity. The first one, 1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega raised to power 4 into 1 plus omega raised to power 8. सिंपल है, देखिएगा. वन प्लस ओमेगा square 1 plus omega raised to power 4. Now this omega raised to power 4 is nothing but omega only because omega cube is 1. तो हम लिख सकते हैं इसको 1 plus omega, ठीक है. And omega raised to power 8, omega raised to power 6 will become 1, so it is omega square. Point is it is becoming 1 plus omega into 1 plus omega square, दोनों का होल स्क्वायर बन रहा है ये, ठीक बात है. 1 plus omega होल स्क्वायर 1 plus omega square होल स्क्वायर, परफेक्ट है. 1 plus omega can be kept as 1 plus omega can be kept as minus omega square whole square and 1 plus omega square is minus omega and square of that square है यार. तो even power है तो negative will become plus sign, that's not a big problem. Minus square will become plus, it will become what? Omega raised to power 4 into omega square. Result is 1. सभी लोगों का 1 आ रहा होगा, रिजल्ट आना चाहिए था, है ना. ओमेगा रेस्ट टू पावर 6, अगेन इट बिकम्स 1. सेकेंड वन इन फेड इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 7, ज़्यादा मत सोचिए. 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया आपने. 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर, इट विल बिकम, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर raised to power 7, that will be equals to minus 2 omega square raised to power 7, that will be equals to, नेगेटिव नंबर है और ऑड पावर है तो माइनस साइन तो रहेगा. 2 raised to power 7 128 and omega raised to power
14, तो ओमेगा रेस टू पावर 14 है तो 3 6 9 12, ओमेगा रेस टू पावर 12 विल बिकम 1, बचेगा कितना ओमेगा स्क्वायर. यस, रिजल्ट कुड बी डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, इट इज कमिंग एज -128 omega square. And if you look for the last one, 1 plus omega square raised to, that's the previous year J screening question, 1 plus omega square raised to power n is equals to 1 plus omega raised to power 4 raised to power n. चलिए इसको सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं. 1 plus omega square raised to power n equals to 1 plus omega raised to power 4 रेस्ट टू पावर n, और आपसे पूछा गया लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n लेकिन लीस्ट वैल्यू. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैन बी केप्ट एज माइनस ओमेगा रेस्ट टू पावर n, ओमेगा रेस्ट टू पावर 4, 1 प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 4, तो ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 इज नथिंग बट ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू पावर n. बोले सर आप क्या करें, चेक कर लें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू. तो कहां से स्टार्ट करोगे चेक करना, n इक्वल्स टू 1 से, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं होगा ना, तो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 पे, n इक्वल्स टू 1 पे माइनस ओमेगा, और ये बन रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर. दोस टू आर नॉट सेम, सेम नहीं है, छोड़ दीजिए. n इक्वल्स टू 2, चेक कर लें, माइनस ओमेगा स्क्वायर इट इज कमिंग एज ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर होल स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 4 विल बिकम ओमेगा. एक ओमेगा स्क्वायर एक ओमेगा, वो भी ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए. लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू विल स्टार्ट टेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम 1 2 3 4, जो ऑप्शन है उसको देखते हुए. यहाँ ऑप्शन नहीं है तो 1 देखा, 2 देखा, फिर 3 देखा, और सीक्वेंस में काम करेंगे. इक्वल्स टू 3 माइनस ओमेगा, यहाँ पे रख रहा हूँ वैल्यू में, माइनस ओमेगा क्यूब इट इज व्हाट, माइनस ऑफ ओमेगा क्यूब इज 1, और माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब माइनस ऑफ ओमेगा रेज़ टू पावर 6 1. ये बराबर मैच हो रहा है. तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n पूछा गया है, तो आप बिना डाउट के n इक्वल्स टू 3 रख देंगे, और क्या है, बस. ठीक है. नाउ यू हैव टू सॉल्व 4 प्लस 5 टाइम्स माइनस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 रेज़ टू पावर 334 प्लस 3 टाइम्स माइनस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 रेज़ टू पावर 365. सिंप्लीफाई करना है इस प्रश्न को. कुछ ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस आयोटा के टर्म्स में. फाइनल रिजल्ट देखिएगा, जो आपको ऑब्जर्व करने वाली बात है और वो ये है -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, एंड इट इज -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2. आपको ये समझ में आ जाना चाहिए -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 को ऑब्जर्व करते हुए इट इज नथिंग बट ओमेगा. आप कहेंगे सर ओमेगा लें या ओमेगा स्क्वायर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेदर यू टेक दिस -1. बस ये ध्यान रखना कि अगर एक को ओमेगा लेते हो तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा, बस इतनी सी बात है. यहाँ पे दूसरा है ही नहीं. हाँ, यहाँ तो सेम ही लेंगे, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं. यहाँ तो दोनों सेम है. -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, यू कैन टेक इट एज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, लेकिन जो भी वो एक ही रखें. और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन है, इफ यू टेक दिस एज ओमेगा स्क्वायर इट इज गोइंग टू बी ओमेगा, दैट इज द ओनली पॉइंट. सो -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 को हमने ओमेगा कंसिडर किया. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 4 प्लस 5 टाइम्स इट इज ओमेगा रेज़ टू पावर 334 प्लस 3 टाइम्स -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 ओमेगा स्क्वायर और रेज़ टू पावर 365. सॉरी, नॉट ओमेगा स्क्वायर, इट इज सेम ओमेगा रेज़ टू पावर 365. ठीक है. व्हाट नेक्स्ट? we are aware of omega cube is 1 और 3 के मल्टीपल में जो नंबर आएगा that will be 1. 3 के डेफिनेटली इंटीजर मल्टीपल. तो आप यहां पर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो 4 प्लस
5 times omega raised to power 334. It is what? Omega. Because omega raised to power 333 will become 1. शायद सभी लोग समझ रहे हैं. It is omega plus 3 times omega raised to power 363. Omega raised to power 363 will become 1. So omega square is remaining here. Clear है? बोले सर अब वो सब तो क्लियर है, आगे क्या किया जाए, आगे की बात कर ली जाए. देखो, yes we are aware of 1 plus omega square equals to 0. It is 3 omega square here, it is 5 omega and it is 4. हमने क्या किया, थोड़ी सी कलाकारी, 3 plus 3 omega plus 3 omega square plus 1 plus 2 omega लिख सकते हैं. और नाउ 3 plus 3 omega square is nothing but 0. ये तो 0 बनने वाला है. 1 plus omega square will become 0. रिमेनिंग टर्म क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी 0 प्लस, चलिए 1 plus 2 ओमेगा, दैट इज 1 plus 2 ओमेगा जो हमने कंसिडर किया दैट इज -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2. सिंप्लीफाई करना था जिसको, जिससे फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाना है. ये 2 भी कैंसिल हुआ एंड इट इज -1. ओके, -1 प्लस 1 भी कैंसिल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है. एंड इट इज √3 आयोटा. क्लियर है, बढ़िया. z² plus z plus 1 equals to 0. Z is a complex number and you have to find out the value of z plus 1 by z whole square plus z square plus 1 by z square whole square plus z cube plus 1 by z cube whole square and up to z raised to power 6 plus 1 by z raised to power 6 whole square. z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. सबसे पहली बात तो इक्वेशन को देख के हमें समझ में आता है कि z² plus z plus 1 equals to 0. इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है. 1 plus x square equals to 0 के ही रूट से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. तो z² plus z plus 1 equals to 0. Even if you solve this, you are going to get -1 plus minus √3 iota by 2. Definitely roots of this equation is nothing but omega and omega square. Omega and omega square are the roots of that equation. मतलब z की वैल्यू ओमेगा हो सकती है या z की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो सकती है. बोले सर हम क्या लें, आप कुछ भी एक कंसीडर कर लीजिए. तो वी हैव टेकन z इक्वल्स टू ओमेगा. ठीक है, तो z इक्वल्स टू ओमेगा लेते हैं हम लोग और इसको सॉल्व किया जाए. ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर. समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लिख रहा हूं. ओमेगा रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़ टू पावर 4 होल स्क्वायर प्लस, इसलिए सारी स्टेप्स लिख रहा हूं या सारी टर्म्स लिख रहा हूं सो दैट आपके लिए बहुत क्लियर और कंफर्टेबल रहे. प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़ टू पावर 6 होल स्क्वायर. सबसे पहली बात तो एक इंश्योर कर लीजिए, ओमेगा क्यूब इज क्लियरली 1. ओमेगा क्यूब है 1, है ना, और 1 बाय ओमेगा क्यूब भी 1 ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा क्यूब इज 1, इट इज 1 प्लस 1 2 एंड 2 स्क्वायर इज 4. तो दिस टर्म इटसेल्फ इज बिकमिंग 4. ये टर्म बन रही है 4, राइट. इफ यू ऑब्जर्व ओमेगा रेज़ टू पावर 1 बाय ओमेगा रेज़ टू पावर 6, तो ओमेगा रेज़ टू पावर 6 भी 1 है. 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर इज 4. 4 प्लस 4 8, तो यहीं पर हो गया. नेगेटिव होने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कहीं पर भी क्योंकि ये सब जगह स्क्वायर है, इसलिए नेगेटिव होने का प्रश्न नहीं उठता. 6 तो बिल्कुल नहीं है, है ना. तो 4 प्लस 4 8. अब क्या किया जाए, ओमेगा रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़ टू पावर 4. इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, ओमेगा क्यूब इज 1, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा. सभी लोग ध्यान से देख लीजिए प्लीज. इट इज बिकमिंग ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा होल स्क्वायर. इट इज बिकमिंग ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 बाय ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर. भाई ओमेगा क्यूब 1 हो गया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर. पॉइंट इज ये 4 प्लस 4 तो 8, तो अपन सेपरेट लिख ही देते हैं, लिख दें.
4 plus 4 8, this is 8 plus twice of omega plus 1 by omega whole square plus twice of omega square plus 1 by omega square whole square. ठीक है भाई, ये दोनों बराबर हो गए ना, these two are same and these two are same, और ये तो 1 1 बन गया. ठीक है, अब बोले सर अब क्या करना, ध्यान से देख लें जरा. ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं. एक और तरीका देख लीजिए, यहीं पर 1 बाय ओमेगा है. ठीक है, 1 बाय ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एवं डिवाइड किया. 1 बाय ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया एवं डिवाइड किया. ठीक है, इट इज बिकमिंग 8 प्लस ट्वाइस ऑफ, बोले सर ऐसा क्यों, आप समझ जाएंगे. इट इज बिकमिंग ओमेगा क्यूब विच इज 1, इट इज बिकमिंग ओमेगा क्यूब दैट इज 1, इट इज बिकमिंग ट्वाइस ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल स्क्वायर. राइट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बहुत अच्छे से आइडिया है आपको, दैट इज इक्वल टू 0. तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज क्लियरली इक्वल टू -1. इट इज बिकमिंग -1, और -1 का स्क्वायर जो होगा दैट इज बिकमिंग 1. So it is 8 plus 2 10 plus 2 12. So result, yes, result is 12. हाँ, ये भी एक जरूरी बात होती है कि रिजल्ट सही आ रहा है, अप्रोच गलत है तो गड़बड़ है ना. ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें तो अपन तब तक ठीक है. ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात अलग होती है कि अगर आपका रिजल्ट 12 आ रहा है, चाहे किसी भी तरीके से आ रहा हो. मैंने बताया ना क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या तो खुद ने किया हो और सही किया हो, या फिर तुक्का मार दिया हो कहीं कुछ, या फिर अगल बगल वाले ने सही कर लिया हो गलती से, तो भी हो सकता है. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस कर रहे हैं. So we have taken omega cube equals to 1 and 1 plus omega square equals to 0, और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. किए हमने. एक और रिजल्ट मैं आपसे पूछता हूँ. इफ इट इज 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2n, 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2n. अब जब 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2n की वैल्यू की बात की जाती है, उस केस में देर आर गोइंग टू बी 2 वैल्यूज देयर, और ये 2 वैल्यूज इसलिए होंगी एंड 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2n विल बिकम 3. It will become 3 when n is a multiple of 3. 3 का अगर मल्टीपल है, इफ इट इज एन डेफिनेटली इंटीग्रल मल्टीपल. मल्टीपल की बात की जा रही तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, है ना. बिकॉज इन दैट केस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इफ इट इज 3 और 6 और 9, तो ओमेगा रेस टू पावर 3 will become 1, omega raised to power 6 will become 1, it will be 1 plus 1 that is 3. और ये ध्यान रखिएगा, it will become 0, इसकी वैल्यू 0 होगी कब, if it is not an integral multiple of 3. रीजन अगर मैं कुछ वैल्यू लेके आपको बताता हूँ. इफ आई टेक n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 5 को लेके बताएं आपको कि n इक्वल्स टू 5 दैट्स नॉट एन मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नहीं है. n इक्वल्स टू 5 ले रहे हैं हम. इट विल बी 1 प्लस ओमेगा रेस टू, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 5 प्लस ओमेगा रेस टू पावर 10, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड इट इज नथिंग बट 0. जो भी वैल्यू आप रखेंगे विच इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3,
if you take n equals to 11, 1 plus omega raised to power 11 plus omega raised to power 22, definitely it is becoming 1 plus omega raised to power 9 will become 0, sorry, omega raised to power 9 is 1, it is omega square plus omega raised to power 21 will become 1, it is omega and it is going to become 0. ठीक है ना. सो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो ध्यान रखिएगा. एंड बेस्ड ऑन दिस ओनली एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए. एंड इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम दैट इट्स अ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन अगेन. इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम दैट n is an odd integer n is an odd integer greater than 3 odd integer greater than 3 but not a multiple of 3. साफ साफ दिया है. It's a greater than 3 not multiple of 3. और आपसे कहा गया है प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स is a factor of x plus 1 raised to power n minus of x raised to power n minus 1. Question is, it is given in the problem, it's a previous year JEE question again, it is given in the problem that n is an odd integer greater than 3, not a multiple of 3, साफ साफ दिया है greater than 3 है but not a multiple of 3. और आपसे कहा गया है ये प्रूव करिए कि that the factor x cube plus x square plus x, this term is a factor of the equation x plus 1 raised to power n minus x raised to power n minus 1. इसे अटेम्प्ट करिए. Now as per the problem n is an odd integer greater than 3 but not a multiple of 3. साफ साफ कहा गया it's not a multiple of 3. और आपसे कहा गया प्रूव करिए कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन x प्लस 1 रेस्ट टू पावर n माइनस x रेस्ट टू पावर n माइनस 1. x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ फैक्टर. फैक्टर का क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात है, फैक्टर का मतलब हुआ कि दिस इक्वेशन कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. फैक्टर है, इसका मतलब यही हुआ. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दैट. सेटिस्फाई करेगा उसको, ऐसा कह दीजिए, या डिवाइड करेगा कंप्लीटली. सो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, थोड़ा सा इसे ऑब्जर्व किया हमने. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. हाउ मेनी रूट्स आर देयर? तो डेफिनेटली एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस इक्वेशन के जो 3 रूट्स हैं, या ये जो फैक्टर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इट इज नथिंग बट एक रूट है डेफिनेटली, वन इज एक्स, एक्स इज नथिंग बट इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. क्या क्या रूट्स हुए इसके? इस इक्वेशन के रूट्स क्या हुए? अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इट्स अ क्यूबिक, तो इसके 3 रूट्स हुए. वन इज, है ना, रूट्स की अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ दैट, तो रूट्स आर 0 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. अब मुझे ये बताना है कि अगर ये फैक्टर है, इसका सीधा सा मतलब है 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों सेटिस्फाई करते हैं x प्लस 1 रेस्ट टू पावर n माइनस एक्स रेस्ट टू पावर n माइनस 1 को. देखिएगा, so I take x plus 1 raised to power n minus x raised to power n minus 1. That is the nth degree equation, polynomial होगा जो भी. If I take x equals to 0, if I take x equals to 0, x equals to 0 लेता हूँ तो it will become 1 raised to power n. It is 1 raised to power n, which is 1. 1 raised to power n is 1. 0 रखा आपने, 1 minus 1 clearly 0. For x equals to 0, it is 1 minus 1
0 सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स गुड। लेकिन फैक्टर बताने के लिए हमें आवश्यक है कि ये बताना पड़ेगा कि 0, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों ही पूर्ण सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक से बात नहीं बनेगी। फॉर x इक्वल्स टू ओमेगा इट इज गोइंग टू बी व्हाट 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n माइनस ऑफ ओमेगा रेस टू पावर n माइनस 1, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा को लिखा आपने माइनस, पहले समझ लीजिएगा, 1 प्लस ओमेगा को लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू पावर n माइनस ऑफ ओमेगा रेस टू पावर n माइनस 1। इन फिर इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ ओमेगा रेस टू पावर 2n। अच्छा, एक बात साफ साफ दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि इट्स एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर है मतलब नेगेटिव नंबर की ऑड पावर लोगे तो नेगेटिव नंबर ही रहेगा, दैट विल बी माइनस ऑफ, ऑड पावर दिया है उसने, माइनस ऑफ ओमेगा रेस टू पावर 2n माइनस ऑफ ओमेगा रेस टू पावर n माइनस 1, राइट, बिकॉज ऑड पावर है, माइनस साइन कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2n, यार बिना कोई डाउट के 1 प्लस ओमेगा रेस टू पावर n प्लस ओमेगा रेस टू पावर 2n कैन बी केप्ट एज 0। क्यों? क्योंकि साफ साफ कहा है कि इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यस इट इज सेटिस्फाइंग दिस, 0 बना रहा है। एंड द थर्ड वन, लास्ट वन, इफ आई टेक फॉर x इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, फॉर x इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 रेस टू पावर n माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर रेस टू पावर n माइनस 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा रेस टू पावर n माइनस ऑफ ओमेगा रेस टू पावर 2n माइनस 1। साफ साफ दिया है प्रॉब्लम में ऑड इंटीजर, इट इज माइनस ऑफ ओमेगा रेस टू पावर n माइनस ऑफ ओमेगा रेस टू पावर 2n माइनस 1, विच इज आफ्टर टेकिंग माइनस कॉमन इट इज 1 प्लस omega raised to power n plus omega raised to power 2n, and yes we have discussed and derived it is going to be 0 again because साफ साफ दिया है it's not a multiple of 3, it is making this 0. Point is x equals to 0, x equals to omega and x equals to omega square, these three values are satisfying this x plus 1 raised to power n minus x raised to power n minus 1, that means x cube plus x square plus x is a फैक्टर ऑफ दैट, क्योंकि उस फैक्टर की जहां तक बात की जा रही थी 3 रूट्स थे, तीनों के तीनों सेटिस्फाई कर गए, तो फैक्टर है, क्यों नहीं है, राइट।